everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Dr. Sakshi Gupta and I'm here to guide you through your journey for NEET PG and INI-SET. So if you think that you are just 6 months away from your exam and panicking कि इतना सारा syllabus कैसे cover करना है, revise कैसे करना है, score कैसे improve करना है, rank कैसे अच्छी आएगी, take a deep breath and relax. Because in this video, I'm going to break down a simple, realistic 6-month study plan for your upcoming NEET PG and INI-SET that will cover all your subjects, your revisions, your GTs and everything and still will keep you sane. Alright, so let's make our 6-month plan. So we have divided our 6 months into 4 parts, keeping first 3 months together. Next we have the 4th month, 5th month and the 6th month. So we'll use our first 3 months for first reading of all the 19 subjects के notes, या फिर you can say कि one complete notes revision of all the 19 subjects, reading them full line by line and everything. Then we'll also use this time for solving PYQs plus also concising notes, making your notes shorter. So what do I mean by concising notes and how can you do that? I'll be elaborating that later in the video. In the 4th month, we plan to give our first GT, analyze that GT, and by analysis I mean I identify the weakest 5 subjects and then use the next 2 weeks for revising those 5 subjects. Then after 2 weeks we give another second GT and then analyze it the same way and give the rest 2 weeks for revising those 5 subjects. In the 5th month we'll do the ultra short crisp revision. I'll later tell you what I mean by that, plus custom modules, 50 questions daily. And 6th month में we'll keep it for GTs, buffer, anything which is left, plus PYQs का revision. Only we'll be revising the PYQs, plus the last week में जो भी आपके weak areas आपको लगते हैं, you do according to yourself. To highlight the high and low weighted subjects for both the exams, INI-SET and NEET. For INI-SET, first and second year subjects are really high weightage, plus your obs and gynae, PSM, medicine and surgery. Rest subjects are kind of low weightage and have less number of questions asked from them. And for NEET PG, all clinical subjects, which are big ones like medicine, surgery, obs, gynae, PSM, and second year subjects, path, pharma, micro are high weightage, and rest other subjects are, low to intermediate weightage. Divide our first 3 months, which will be devoted to first reading of all subjects plus, revision of full notes and PYQs. So in the first week, let's start with surgery. We'll give 4 days for reading all of the notes or, first reading of the subject. We'll give 4 days. Now, this is our surgery week. So what we'll do is, suppose we start with Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. We do surgery for 4 days. Then we'll use Friday and Saturday for solving the PYQs. Okay, we'll solve PYQs. And one thing I want to say कि जब भी आप PYQ solve कर रहे हो तो इसको आपको utilize कैसे करना है. Firstly, PYQs are very high yield, तो आप उनको solve करोगे. तो उनको solve करते वक्त जो भी आपको important PYQs, because you have already have done first reading of the subject, आपको पता है कि आपके notes में क्या क्या है, आपने क्या क्या पढ़ लिया. अब आप PYQs करते हो तो firstly क्या होगा कि एक तो आपने एक read कर रखा है तो आप PYQs अच्छे से attempt कर पाओगे. दूसरी चीज you'll know कि कौन से PYQs out of your notes हैं, तो आप क्या करोगे, उन PYQs को add extra PYQs in your notes. Okay, you will add those in your notes. ठीक है. और उसके अलावा जब आप PYQs करते हो तो आपको पता चल जाता है कि कौन से मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है ना. तो ट्राई करो कि लिस्ट बनाओ ऑफ दीज टॉपिक्स, इन टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ और उनको मतलब अपने नोट्स के फर्स्ट पेज पे लिख लो. ठीक है. और संडे आप यूज करोगे कंसाइज करने के लिए अपने नोट्स को. ठीक है. मैं भी आपको बताऊंगी कि आपको कैसे कंसाइज करना है. जस्ट कीप की मोस्टली हम हर वीक में थोड़ा थोड़ा टाइम कंसाइज करने के लिए देंगे. ठीक है. और फिर उसमें हम एक दिन पूरा जो है कंसाइज करने के लिए यूज करेंगे, ताकि हम जब अगली रिविजन करें तो हम पूरे नोट्स ना पढ़ रहे हो, हम बस वो कंसाइज नोट पढ़ रहे हो और हमारी रिविजन फास्ट हो जाए. हम हमेशा रिविजन कैसे रखेंगे, कंसाइज नोट्स के साथ, और जो PYQs हमने ऐड करे हैं, ठीक है, वो चीज हमें करनी है हमेशा रिवाइज. तो सेकेंड वीक में हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं. मेडिसिन में मोटा मोटा 7 यूनिट्स आ जाते हैं. ठीक है. 7 यूनिट्स में CBS, CNS, रेस्पी, रिमैट, साथ में आपका GIT, रीनल एंड एंडोक्राइन. ठीक है. हमारा फर्स्ट रिविजन को हम 2 वीक्स का टाइम देंगे पूरे मेडिसिन को, बिकॉज मेडिसिन इज वेरी हाई यील्ड. ठीक है. हम ये करते हैं कि पूरे 7 यूनिट्स को गिव 1 डे टू ईच यूनिट. ठीक है. और 7 डेज के अंदर हम सारे यूनिट्स को रिवाइज कर लेंगे. ठीक है. उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 डेज देंगे नेक्स्ट वीक का. सपोज मंडे टू हमारा संडे जा चुका है, इसके अंदर वीक 3 का जो मंडे आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, विल गिव फॉर PYQs. ठीक है. PYQs दिया. और नेक्स्ट 2 डेज जो है
थर्सडे एंड फ्राइडे उसमें हम कंसाइज करेंगे. विल कीप सैटरडे एंड संडे एज बफर, क्योंकि हमने मेडिसिन और सर्जरी किया है, बिग सब्जेक्ट. सो वी आर डन विद आवर फर्स्ट 3 वीक्स. वीक 4 में नाउ वील स्टार्ट विद 2 सब्जेक्ट्स मोस्टली, ठीक है, बिकॉज हमने मेजर सब्जेक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट उनको पूरा टाइम दिया है, और अब हम 3 हफ्ते डाउन द लाइन है, 4th वीक में है, तो हमारी स्पीड एंड रूटीन इज मच बेटर नाउ. तो हम स्टार्ट करेंगे. सपोज वी स्टार्ट विद ऑब्स गायनी प्लस रेडियो, 2 सब्जेक्ट्स. रेडियो इज अ शॉर्ट सब्जेक्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है बिकॉज सारे सब्जेक्ट्स के साथ ही ऑलरेडी कवर हो जाता है. स्टिल जो भी हमारे बायो फिजिक्स वाले टॉपिक्स हैं एंड अदर स्टफ, जो भी पेट स्कैन और न्यूक्लियर इमेजिंग वाले टॉपिक्स हैं, वो स्पेसिफिकली सिर्फ रेडियो के अंदर ही पढ़ सकते हो आप. तो वो सब आप रेडियो में उसमें टाइम इन्वेस्ट करो, 1-2 TND देखो. आई थिंक दैट इज सफिशिएंट, ठीक है. तो ऑब्स गायनी को वील गिव 5 days एंड रेडियो को विल गिव 2 days, ठीक है. इसमें रेडियो में 2 days में हम अपने नोट्स भी पढ़ेंगे, साथ में PYQs भी करेंगे. आई डोंट थिंक रेडियो में इतना कुछ कंसाइज करने की जरूरत है, इतना कुछ कंटेंट है ही नहीं. स्टिल अगर आपको करना है तो यू कैन डू, ठीक है. फिर ऑब्स गायनी में भी आई थिंक ऑब्स और गायनी को अगर हम डिवाइड कर लें तो यू कैन गिव 2 days फॉर ऑब्स, 1 day फॉर गायनी इज एनफ, आई थिंक, ठीक है. वो भी फिर भी आप अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है. फिर बचते हैं हमारे पास 2 दिन, है ना. तो वील गिव 1 day फॉर PYQ सॉल्विंग एंड 1 day फॉर कंसाइजिंग आवर नोट्स. आई रियली थिंक कि आप ये कंसाइज वाला डे हमेशा रखो अपने साथ, बिकॉज मेन जस्ट हमें यही करना है कि हम अपने नोट्स को कंसाइज कर पाए. इस 3 months का मेन यूटिलिटी यही होगा कि फ्यूचर में जब आप रिवाइज करोगे तो आप कंसाइज नोट्स रिवाइज करोगे, है ना. उसके बाद नेक्स्ट 5th वीक में सपोज वी स्टार्ट विद PSM प्लस साइकाइट्री. आई एम ट्राइंग टू कीप इट लाइक एक बड़ा सब्जेक्ट और एक छोटा सब्जेक्ट, ताकि टाइम इक्वली डिवाइड हो पाए, ठीक है. सेम स्ट्रैटेजी रखेंगे, 2 days फॉर साइकाट्री, 5 days फॉर PSM. सेम रखेंगे हम कि 3 days आप PSM पढ़ लो, एज पर जैसे आपको डिवाइड करना है, यू आर फ्री टू डू दैट, ठीक है. उसके बाद 1 day आप करोगे PYQs एंड 1 day आप करोगे कंसाइज. एंड साइकाट्री के लिए हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? सपोज 1.5 days आप देते हो इसको पढ़ने के लिए, रिवाइज करने, नोट्स रिवाइज करने के लिए, प्लस 0.5 days. आई थिंक बहुत ज़्यादा PYQs नहीं है साइकाट्री में, कैन डू दैट फॉर PYQs. और कंसाइज करना है तो करो, मतलब साइकाट्री इज इटसेल्फ अ वेरी स्मॉल यूनिट. आपको किसी भी आपके कंसाइज नोट्स या फिर रैपिड रिविजन जो होता है वो पढ़ लेना लास्ट में, इसमें ऐसा कुछ कंसाइज करने की जरूरत नहीं है. नाउ फॉर द वीक 6th वी चूज द सब्जेक्ट्स एज पैथोलॉजी, ठीक है. पैथोलॉजी आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है. और इसमें हम 3 parts डिवाइड कर लेते हैं, जनरल पैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ठीक है, एंड साथ में सिस्टमिक पैथोलॉजी. 3 parts हो गए. तो आई थिंक पैथोलॉजी को हम पूरा 1 week दे देते हैं. अगर थोड़ा टाइम बचता है तो यू कीप इट दैट एज बफर, जो भी सपोज पिछले दिनों में रह गए यू कैन यूज दैट. तो आई थिंक 1.5 days आप तीनों यूनिट्स को दे दो. दिस काउंट्स टू 4.5 days. अब 2.5 days आपके पास बचते हैं, उसको आप PYQs और कंसाइज करने के लिए यूज करो, ठीक है. मतलब आप या तो 1 दिन PYQs करो या 1.5 days PYQs करो, ये सब करना है, ठीक है. वीक 7 में वील गो फॉर फार्मा प्लस पीडियाट्रिक्स. पीडियाट्रिक्स अगर आपने मेडिसिन जैसे अच्छे से किया है तो पीडियाट्रिक्स विल नॉट टेक अ मच ऑफ टाइम, ठीक है. मेजर न्यूनेटोलॉजी होगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसमें एंड डिफरेंट होगा. बाकी मोर और लेस यू कैन कोरिलेट विद मेडिसिन, या फिर आप जैसे मेडिसिन में जो बफर टाइम था उसमें पीडियाट्रिक्स का कुछ पार्ट कर सकते हो, या फिर मेडिसिन के यूनिट्स के साथ ही पीडियाट्रिक्स के यूनिट्स भी निपटा सकते हो सिस्टमिक वाले, ताकि अपनी न्यूनेटोलॉजी जो है वो वीक 7 में करो. मतलब इट्स अप टू यू कि आप कैसे टाइम मैनेज करते हो. तो फार्मा एंड पीडियाट्रिक्स. उसके बाद 8th वीक में वील कीप माइक्रो प्लस डर्मा. उसके अलावा वीक 9 में वी कीप फिजियो प्लस बायोकेम, ठीक है. ये दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल लेवल के सब्जेक्ट्स हैं, मतलब तो यू कैन गिव देम लाइक 3.5 days करके, ठीक है. आप सब कुछ कवर कर लोगे इनका. फॉर एग्जांपल सिमिलरली ENT प्लस ऑप्थैल्मस, सिमिलर इनका कंटेंट है, सिमिलर ही बिग साइज है इनका, मतलब तो यू कैन कवर देम लाइक 3.5 days एंड 3.5 days. तो मतलब उसमें भी आप जैसे 2 days में आपने नोट्स पढ़ लिए, ठीक है. 1 दिन आपने PYQs के लिए लगा दिया एंड उसके बाद 0.5 days आपने लगा लिए कंसाइज करने के लिए. उसके बाद यू गो फॉर FMT प्लस एनाटमी एंड वीक 12 में यू विल गो फॉर ऑर्थो एंड एनेस्थीसिया. उसके बाद भी कुछ बचता है तो आप उसको इसमें बफर वीक में लगा सकते हो, बिकॉज बहुत ऑर्थो एंड एनेस्थीसिया इतने बड़े सब्जेक्ट नहीं है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 4th month. अब हमने सारे सब्जेक्ट्स एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिए, सारे नोट्स कर लिए, बट हमने अभी तक एक भी GT नहीं दिया है. तो स्टार्टिंग अब 4th month जब भी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वी विल गिव अ GT फर्स्ट. तो सपोज मंडे से हमने स्टार्ट किया
तो हम मंडे को एक जीटी देंगे, 3 घंटे का जीटी दिया, उसके बाद हम 1 घंटा 1.5 घंटा ब्रेक लेंगे। उसके बाद आप 4 से 5 घंटे उसके एनालिसिस में लगाओ, देखो कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, क्यों गलत हुए हैं, और जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको अपने नोट्स में ऐड करो पर सब्जेक्ट वाइज। जो भी क्वेश्चन आपने गलत किए हैं या आपको लगता है कि अच्छे क्वेश्चन हैं एंड यू डिडंट नो दैट कॉन्सेप्ट ऑलरेडी, तो उन सबको ऐड करो, अपने PYQs के सेक्शन में ऐड कर सकते हो, या फिर आप अपने ऐसे जीटी रॉन्ग क्वेश्चन का भी एक अलग से सेक्शन पर सब्जेक्ट बना सकते हो अपने नोट्स में। उसके बाद आपको देखना है सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करना है। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में आप क्या देखोगे कि आपके बॉटम 5 सब्जेक्ट्स कौन से रहे, वीकेस्ट 5 सब्जेक्ट्स कौन से रहे, जिनमें सबसे ज़्यादा गलत क्वेश्चन हुए हैं। तो उन सब्जेक्ट्स को आप देखोगे और टारगेट रखोगे फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स कि ये आपके बॉटम 5 हैं, दैट यू हैव टू इम्प्रूव एट प्रायोरिटी इन दीज सब्जेक्ट्स। तो आप 2 हफ्ते लगाओगे, 2 हफ्तों में इन 5 सब्जेक्ट्स को रिवाइज करोगे। मतलब आपको टाइम डेज जैसे भी डिवाइड करना है, इट्स ऑन यू, ठीक है, बट आपको ये टारगेट रखना है कि 5 सब्जेक्ट्स हैं, 2 वीक हैं, तो आपको ये टारगेट करके रखना है कि रिवाइज करना है। फिर जब वीक 3 स्टार्ट होगा तो आप सेकंड जीटी दोगे। सेम इसमें भी पाथवे फॉलो होगा कि जीटी दिया, उसको एनालाइज किया, उसमें देखेंगे कि बॉटम 5 सब्जेक्ट्स कौन से हैं, और फिर नेक्स्ट 2 वीक्स हम लगाएंगे उन्हीं 5 सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने के लिए। नाउ स्टार्टिंग विद 5th मंथ ऑफ आवर प्रिपरेशन, उसमें इसको हमने टाइटल दिया है अल्ट्रा शॉर्ट क्रिस्प रिविजन का। इसमें हम जो है सारी रिविजन सारे सब्जेक्ट्स करेंगे इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हम कंसाइज नोट से रिविजन करेंगे, साथ में हम करेंगे कस्टम मॉड्यूल्स। कस्टम मॉड्यूल्स हम रोज डेली 50 क्वेश्चंस का कस्टम मॉड्यूल बना के करेंगे, ठीक है। कस्टम मॉड्यूल करो या कोई बैंक करो, व्हाटएवर योर चॉइस, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म से करो। तो कस्टम मॉड्यूल का फायदा क्या होगा कि आप डेली 50 क्वेश्चंस करोगे तो यू विल गेट इन द हैबिट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस, योर स्पीड विल इंप्रूव, ठीक है, एंड यू विल एक्चुअली गेट टू नो कि क्वेश्चंस आ किस टाइप के रहे, और आपको सॉल्विंग का प्रैक्टिस होगा, आपको आइडिया लगेगा गेसिंग कैसे कर रहे हैं, एलिमिनेशन कैसे करना है, ठीक है। तो आई सपोज कि 50 क्वेश्चंस करने के लिए 2 आवर्स आर इनफ। आप हर दिन का 2 घंटे अगर आप 50 क्वेश्चंस कर रहे हो तो दैट इज गुड इनफ। सब्जेक्ट आप जो जिस सब्जेक्ट का रिविजन कर रहे हो वो चूज कर सकते हो, नेक्स्ट डे का सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, टोटली अप टू यू। तो 5th मंथ का वीक 1 जो हम बनाएंगे उसमें हम 1 डे फॉर ईच सब्जेक्ट रिवाइज करने के लिए देंगे। शॉर्ट सब्जेक्ट्स रखेंगे मोस्टली। तो सपोज मंडे है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। मंडे को हमने डर्मा किया, ट्यूसडे को एनेस्थीसिया, वेंसडे को रेडियो, थर्सडे को साइकेट्री, फ्राइडे को ऑर्थो, सैटरडे को ENT और संडे को ऑफ्थैल्म। वी हैव गिवन 1 डे फॉर ईच सब्जेक्ट, और साथ में हम रोज 2 घंटा जो है कस्टम मॉड्यूल कर रहे हैं, 50 क्वेश्चंस, ठीक है। अब वीक 2 आ जाता है। वीक 2 के अंदर हम मेजर सब्जेक्ट्स करेंगे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे हम मेडिसिन को देंगे, थर्सडे एंड फ्राइडे आप सर्जरी को दो, ठीक है। आपने नोट्स कंसाइज करें, सर्जरी 2 दिन में हो जाएगा। फिर सैटरडे संडे आप पीड्स को दे दो। वीक 3 में आप मंडे, ट्यूसडे ऑब्स गाइनी को दो, यू कैन डू दैट, ऑब्स एक दिन में, गाइनी एक दिन में। वेंसडे, थर्सडे यू गिव फॉर एनाटमी, उसके बाद फ्राइडे यू फॉर FMT, सैटरडे फॉर फिजियो, संडे फॉर बायोकेम। देन गो फॉर वीक 4। वीक 4 में वी गो फॉर मंडे, ट्यूसडे पैथोलॉजी, वेंसडे, थर्सडे फार्मा, फ्राइडे, सैटरडे माइक्रो, ठीक है, और संडे और एक मंडे और हम यूज करेंगे इसमें PSN के लिए। ये हम 5th मंथ का हमने रिविजन प्लान बनाया है। इसमें हम डेली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 50 क्वेश्चंस, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर 50 नहीं हो रही तो यू स्टार्ट विद लेस, उसके बाद आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो यू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा जब भी क्वेश्चंस कर रहे हो, कोई अच्छा क्वेश्चन लगता है, ऐसा लगता है कि तो कुछ नया है, ये मैंने कभी नहीं पढ़ा हुआ है पहले, यू टेक अ स्क्रीनशॉट, ऐड इट इन अ PDF, ठीक है, ताकि या फिर उसको नोट्स में ऐड करो, व्हाटएवर यू थिंक कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो साथ में, और आप उनको एक जगह कलेक्ट भी कर सको नेक्स्ट रिविजन के लिए, या उसी दिन मतलब जब वीकेंड में आपने सारे कस्टम मॉड्यूल्स का एक यूनिट सब्जेक्ट वाइज बना लिया, और वीक एंड में 3-4 घंटे लगा के जस्ट रिवाइज दैट, ठीक है। मतलब ये रखना है कि जो भी कर रहे हो उसको रिवाइज करो, सिर्फ एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और उसको रिवाइज नहीं किया तो उसका मेजर कोई फायदा मिलता नहीं है, बिकॉज यू टेंड टू फॉरगेट दैट, है ना। तो हमेशा जो कर रहे हो रिवाइज इट एटलीस्ट वंस, और जितना जल्दी रिवाइज कर लोगे ना, एक बार किया वो प्राइम हो जाएगा ब्रेन में, तो इट गेट्स रिटेन बेटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 6th मंथ और द फाइनल मंथ ऑफ आवर प्रिपरेशन। इसमें हम क्या करेंगे कि पहला वीक जो भी हम रखते हैं बफर टाइप में, कि जो भी बच जाता है आपका वो आप करोगे, और संडे ऑफ वीक 1 में एक GT देना है। और मतलब आई थिंक एवरी संडे जो आप देते हो एक GT दे दो, और एग्जाम टाइम में देना है 9 से 12:30 वाला जो भी टाइम होता है एग्जाम टाइम, इस टाइम में आप GT दोगे ताकि यू गेट इन द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग एग्जाम्स उसी टाइम पे, ठीक है। वीक 2 से हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, और रिवाइज सब कुछ नहीं करेंगे, ओनली PYQs करना है रिवाइज बस, और साथ में मेक अ लिस्ट। आप फाइनल वीक के लिए एक लिस्ट बनाओगे अपने हर सब्जेक्ट के 5 वीक टॉपिक्स जो आपको पता है कि यार हाँ इंपॉर्टेंट भी है, PYQs में भी आ रहे हैं, काफ़ी रिपीट भी हो रहे हैं, बट मेरे वीक है, मुझे याद नहीं हो रहा, या वोलेटाइल टॉपिक्स, वीक या वोलेटाइल टॉपिक्स हम जो भी, तो 5 टॉपिक्स ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा की लिस्ट बना लोगे तो वो भी यार रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी हम वीक 2 और 3 इन्वेस्ट करेंगे फॉर PYQ रिविजन, ठीक है। जो भी आपने PYQs करे हैं
PYQ रिविजन करेंगे। उसमें मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। मंडे को विल डू मेडिसिन, ट्यूसडे को सर्जरी, वेंसडे को ऑब्स गाइनी प्लस पीड्स। सिर्फ PYQs कर रहे हैं तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक दिन में हो जाएंगे। तो इसमें ऑर्थो, एनेस्थीसिया, रेडियो। ठीक है, फ्राइडे को हम करेंगे पैथ प्लस साइकैट्री, सैटरडे को फार्मा प्लस ENT, संडे हमने GTs के लिए रखा है। मंडे को हम करते हैं सपोज एनैट, ट्यूसडे को बायोकेम, साथ में FMT, फिर हमने कर लिया फिजियो प्लस डर्मा, थर्सडे को PSM, फ्राइडे को माइक्रो प्लस ऑप्थाल। ठीक है, सैटरडे की पैस बफर, संडे को दे दिया GT। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ बफर भी रखना है बिकॉज ऐसा नहीं है कि एवरीडे आप सब कुछ उतनी एफिशिएंसी से रिवाइज कर रहे हो। कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है कि यू कुडंट परफॉर्म एज पर योर स्केड्यूल, तो बफर डेज भी रखो अपने स्केड्यूल में और इसमें अपने हिसाब से जो भी मॉडिफिकेशन आपको करना हो यू कैन डू दैट। लास्ट वीक जब भी होगा एग्जाम से पहले तो जो भी आपने ये वाली लिस्ट बनाई है 5 वीक टॉपिक्स की, वोलेटाइल टॉपिक्स की, वो आप लास्ट वीक में रिवाइज करोगे। ओनली वीक एरियाज, नॉट एवरीथिंग। पैनिक नहीं करना है। ट्राई करो लास्ट वीक में GTs मत दो। ठीक है, यूज योर टाइम फॉर रिविजन। Now, as we were talking a lot about, concising our notes, उनको shorter कैसे बनाना है for easy revision, fast revision, तो I'll show कि मतलब मेरा concept of concising notes कैसा है. So, I'll give you an example. I have, concise remat of medicine for you guys. So, on a single sheet, I have everything, every topic of the remat and all the important points which are most commonly asked in exams. So, मुझे जब remat revise करना होगा बाद में तो I'll just look at this one page और मेरा पूरा remat revision हो जाएगा. I'll not have to scroll through multiple pages of a PDF or, multiple pages of your notes. For example, this remat, तो I have, made a table. उसमें मैंने यहाँ पे सबसे left hand side पे I have, enlisted all the diseases of this unit, SLE, DLE, everything, उन सबको मैंने लेफ्ट साइड में नोट किया है और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं उन सबको मैंने यहाँ पे इस पॉइंट्स में लिख रखा है. फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट गाउट, तो गाउट के बारे में कि इंक्रीज यूरिक एसिड से होता है या फिर फ्लेयर अप्स विद अल्कोहल, इसमें टोफाई होते हैं, एक्सरे पे मार्टल साइन मिलता है. ठीक है, और फर्स्ट MTP जॉइंट इन्वॉल्व होता है, नीडलशिप बायफ्रिंजेस, नेगेटिव बायफ्रिंजेस होती है, एक्यूट मैनेजमेंट क्या है, क्रॉनिक मैनेजमेंट क्या है. तो ये मोस्टली इंपॉर्टेंट गाउट के क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं. तो आई हैव एनलिस्टेड ऑल ऑफ दैट इन दिस कंसाइज शीट. तो इस तरीके से हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नोट्स को कंसाइज करेंगे हर यूनिट को, ताकि जब हम रिवाइज करेंगे तो दैट वुड बी रियली रियली फास्टर और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा बिकॉज आप ज़्यादा रिविजन्स कर पाओगे और ज़्यादा रिटेन कर पाओगे. Remember, 6 months is enough if you study smartly. Every topper you see around has been once in your place, scared, confused and overwhelmed. But what made them stand out was consistency. Not talent, not perfection, but the spirit and will to show up every day and push a little harder. So guys, if you found this video helpful, please hit the like button and share it with your friends who need a 6-month plan for your upcoming exam. All the best and thank you.